નમસ્કાર, હું છું આપણી સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ. સમાચારોની શરૂઆત કરી આપણે ઉત્તર પ્રદેશથી. ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌથી મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે સમર્થ ઉત્તર પ્રદેશ પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે. આ પોર્ટલ રાજ્યના લોકોને તેમના સૂચનો આપવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે, જે 12 મુખ્ય ક્ષેત્રો કૃષિ, પશુધન સંરક્ષણ, ઔદ્યોગિક વિકાસ, આઈટી ટેકનોલોજી, પર્યટન, શહેરી અને ગ્રામીણ વિકાસ, માળખાગત સુવિધા, સંતુલિત વિકાસ, સમાજ કલ્યાણ, આરોગ્ય, શિક્ષણ, સુરક્ષા અને સુશાસન પર કેન્દ્રિત વિઝન ડોક્યુમેન્ટનો ભાગ બનશે. આ વિઝન ડોક્યુમેન્ટ પૃથ્વી શક્તિ, સર્જન શક્તિ અને જીવન શક્તિ થીમ પર આધારિત છે. વહીવટ, પોલીસ, વન સેવા, કૃષિ, શિક્ષણ, આરોગ્ય વગેરે ક્ષેત્રોના 400થી વધુ નિવૃત્ત અધિકારીઓ અને બુદ્ધિજીવીઓએ વર્કશોપમાં ભાગ લીધો હતો. જણાવી દઈએ કે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે જનતાને અપીલ કરતા કહ્યું કે ભારત અને યુપીનું ભવિષ્ય કેવું હોવું જોઈએ તે આપણે નક્કી કરવાનું છે. આપણે આપણા યુવાનોને તૈયાર કરવા પડશે, કારણ કે આપણે જે દિશામાં રહીએ છીએ તે જ દિશામાં આગળ વધીશું. આપણે કેવા પ્રકારનું ભારત અને ઉત્તર પ્રદેશ ઈચ્છીએ છીએ, આ આપણા વિઝનમાં હોવું જોઈએ. લોકભવન સભાગૃહમાં સમર્થ ઉત્તર પ્રદેશ વિકસિત ઉત્તર પ્રદેશ 2047 અભિયાનના લોન્ચ પ્રસંગે સીએમ યોગી વર્કશોપને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. સમાચારોમાં આગળ હવે આ તરફ આપણે વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના બલિયાની. તો ઉત્તર પ્રદેશના બલિયાની બાંસડીહ વિધાનસભા બેઠકના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય કેતકી સિંહ હાલમાં ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. યુપી ચૂંટણી 2027 માટે જમીન તૈયાર કરવામાં રોકાયેલા પક્ષો મુદ્દા બનાવવા અને કરવામાં વ્યસ્ત છે. તે દરમિયાન ભાજપના ધારાસભ્ય કેતકી સિંહે સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવ પર નડતી હુમલો કર્યો છે. વર્ષ 2017માં ઉત્તર પ્રદેશમાં સત્તા પરિવર્તન થયા પછી લગભગ બધી જ ચૂંટણીઓમાં એક બીજા બહાને નરનો વિવાદ ઉભો થયો છે. હકીકતમાં લખનૌમાં મુખ્યમંત્રી નિવાસ સ્થાન છોડતી વખતે અખિલેશ યાદવ પર ત્યાંથી સામાન ચોરી કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે પ્રોપર્ટી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા પણ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. તેમાં નરનો ઉલ્લેખ પણ હતો. જણાવી દઈએ કે સપા નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રદર્શનથી 2016માં ભાજપ નેતા દયાશંકર સિંહ વિરુદ્ધ બસપા નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રદર્શનની યાદો તાજી થઈ ગઈ છે. ત્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણી મેદાનમાં નરનો મુદ્દો સતત ગરમ કરી રહી છે. જ્યારે કેતકી સિંહે ફરી એકવાર આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે, ત્યારે સમાજવાદી પાર્ટીના કાર્યકરો ગુસ્સે ભરાયા છે. તેઓ કેતકી સિંહના નિવાસ સ્થાને પહોંચ્યા અને પ્રદર્શન શરૂ કર્યું હતું. ત્યારે જણાવી દઈએ કે આ પ્રદર્શન સપા મહિલા કાર્યકરો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. मैं तो जाऊंगी एफआईआर दर्ज कराने, ये कोई बात नहीं होती है. मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया था कि आप उसके पास गए थे. उसकी सुरक्षा के लिए मैं उसकी सुरक्षा की मांग भी करूंगी कि मेरी बेटी के साथ ये नहीं होना चाहिए था. मैं जाऊंगी, कल मेरी बात होगी. मैं अभी निकल रही हूँ लखनऊ, मैं जाऊंगी, मैं अपने संगठन में भी बात करूंगी कि ये कदापि स्वीकार्य नहीं है और मैं ये नहीं होने दे सकती. तो क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग, जो लोग हैं? ये यही साबित करना चाहते हैं कि देख लो, ये टेलर है. अभी हम सरकार में नहीं हैं, अभी हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो तुम्हारे घर की बेटियों की सुरक्षा तक हम नहीं अभी भेद रहे हैं. जब मेरे जैसे, आप ये बताइए, मेरे पास गार्ड हैं, मेरी सरकार है, मेरे महाराज जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ मेरा है. मेरी बच्ची सहम के घर बैठी हुई है, स्कूल नहीं गई. मैं मीडिया से कहना चाहूँगी कि इस बात को सोचना पड़ेगा, समाज तक पहुँचाना पड़ेगा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरी बेटी स्कूल नहीं गई. केतकी सिंह की बेटी हूँ और आज हमारे घर पे यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव के सरकार पे. बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है. तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा ली ना, तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी. तो आप लोग मेरे को तो ना बोलिए, ठीक है. अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं. बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है. 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है, उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है. अभी हमारे साथ केतकी सिंह जी हैं, जो फायर ब्रांड विधायक हैं बांसडीह की. उनके लखनऊ आवास पे कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है, उसके
उनका कहना है, क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। मैडम, जिस तरह से आपके आवास पे जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, वहाँ पे लोगों ने जमावड़ा किया और प्रदर्शन किया, आपकी बेटी स्कूल नहीं जा पाई, क्या कहेंगे इस पे? ये समाजवादी पार्टी के गुंडों का असली रूप दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी या जो आम जनमानस चिल्लाते हैं कि समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे हैं, ये दिखा रहा है। ये दिखाता है कि इनकी पार्टी के अगर इर्द गिर्द भी कोई महिला, कोई बच्ची है तो वो इनके निशाने पे कितनी आराम से आ सकती है। एक 15 साल की बच्ची को ये बुजदिल, ये डरपोक, ये कायर 15 साल की बच्ची को डराने के लिए मेरे आवास पहुंचे थे, जबकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं बलिया हूँ। सबको पता है कि मैं बलिया बास्ती में हूँ। सबको पता है कि मैंने सारे बयान यहाँ से दिए थे। तो किसको डराने के लिए गए थे वहां पे? क्या करने आप लोग मेरा लखनऊ आवास घेरने गए थे? यही जानते थे ना कि वहां बच्ची है, उसको डरा देंगे तो उसकी माँ डर जाएगी, क्योंकि माँ के लिए तो सबसे कीमती उसके बच्चे होते, और उसमें भी अगर बच्ची है तो उसकी मान, उसकी प्रतिष्ठा, तो उसके लिए सब कुछ आ जाती है। तो यही मैसेज मुझे देने के लिए गए थे ना कि तुम बोलोगी तो वहां हम तुम्हारी बच्ची को घेरेंगे। तो मैं उनमें से नहीं हूं, ना मेरी बच्ची डरती है ना मैं डरती हूँ। आज मेरी बेटी स्कूल नहीं गई, आप क्या चाहते हो? क्या आप मेरी बच्ची का स्कूल छुड़ाना चाहते हो, उसकी पढ़ाई छुड़ाना चाहते हो? तो वो योगी सरकार में हो नहीं सकता। मैं स्वयं जा रही हूँ और कल अपनी बच्ची को स्वयं लेकर मैं इसको स्कूल जाऊंगी। जी, अभी तो थी हमारे साथ केतकी सिंह जी, जो अपनी बात रखी बलिया से इंडिया न्यूज की। સમાચારોમાં આગળ હવે આ તરફ આપણે વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીની, તો વારાણસીમાં ભોજપુરી સુપરસ્ટાર પવન સિંહ સહિત 4 લોકો સામે છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। હોટેલ બિઝનેસમેન વિશાલ સિંહે ફિલ્મ પ્રોડક્શનમાં રોકાણના નામે 1.32 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો છે। કોર્ટના આદેશ પર કેન્ટ પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે। કેન્ટ પોલીસે ભોજપુરી સુપરસ્ટાર પવન સિંહ સહિત 4 લોકો સામે કરોડોની છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કર્યો છે। જણાવી દઈએ, મંગળવારે ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટના આદેશ પર પોલીસે કેસ નોંધવાની કાર્યવાહી કરી ઘટનાની સત્યાસત્ય જાણવા માટે કેસની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। શહેરના નટીમલ્લીના રહેવાસી હોટેલ બિઝનેસમેન વિશાલ સિંહે ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે ભોજપુરી ફિલ્મ પ્રોડક્શનના નામે તેમની સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે। વિશાલનો આરોપ છે કે મુંબઈમાં અભ્યાસ દરમિયાન તે પ્રેમશંકર રાય અને તેની પત્ની સીમા રાયને મળ્યો હતો। બંનેએ 2018માં ભોજપુરી ફિલ્મ બનાવવાના નામે કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવ્યું હતું અને ખાતરી આપી હતી કે ખર્ચ કરેલા પૈસા સબસિડી અને નફાના રૂપમાં પરત કરવામાં આવશે। ફિલ્મમાં અભિનેતા પવન સિંહ અને દિગ્દર્શક અરવિંદ ચૌબે હતા। જ્યારે વાત સાચી પડી ત્યારે વિશાલે લગભગ 32,60,000 રૂપિયા સીધા હપ્તામાં ખાતામાં જમા કરાવ્યા હતા। ત્યારે ફિલ્મના શૂટિંગ અને પોસ્ટ પ્રોડક્શન પર લગભગ 1,25,00,000 રૂપિયા ખર્ચ કરવામાં આવ્યા હતા। તેમ છતાં ન તો પૈસા પરત કરવામાં આવ્યા હતા અને નફામાં કોઈ હિસ્સો આપવામાં આવ્યો પણ ન હતો। અને એવો પણ આરોપ હતો કે આરોપીએ ખોટા દસ્તાવેજો તૈયાર કર્યા હતા અને તેને નિર્માતા તરીકે બતાવ્યો હતો અને જ્યારે તેણે પૈસાની માંગણી કરી ત્યારે તે બચી ગયો હતો અને કોર્ટે આ કેસને ગુનો ગણાવીને તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો। देखिए, लगभग 1.25 करोड़ के अमाउंट का प्रकरण है ये, जिसमें वादी विशाल सिंह द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशक से 56 तहत के तहत 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें प्रेमशंकर राय, सीमा राय, पवन सिंह एवं अरविंद चौबे जी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रकरण इसमें ये था, धाराएं इसमें जो है वो 420, 406, 467, 468 और 506 की धारा आईपीसी के तहत ये दर्ज हुआ है। और वादी का ये कहना है कि वादी के द्वारा जो एक होटल व्यवसायी है, जिन्हें यह बताया गया है कि वो जो है फिल्म निर्माण के नाम पे उन पे पैसा इन्वेस्ट कराया गया और उनको अधिक मुनाफा मिलेगा। तो मोटा मोटा प्रकरण ये था इसमें। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बनारस में अदालत के आदेश पे उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आईपीसी की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे साथ वादी के अधिवक्ता हैं, इनसे ही हम जानेंगे, बात करेंगे कि किन किन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और क्या पूरा मामला था। प्रकरण मूवी बनाने का था, जिसमें मूवी बना के पिक्चर पैसा इन्वेस्ट कराया गया और फिर पैसे को रिटर्न नहीं किया गया। पूरा गिरोह बन कर तरीके से हमको ठगा गया। हमारे मुवक्किल जो हैं विशाल सिंह, 2018 में बॉस नाम की मूवी आई थी, जिसमें उन्होंने 1.25 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया था और 1.25 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद मूवी बनी, पिक्चर चली, सुपर डुपर हिट रही। प्रॉफिट जो मुनाफा हुआ वो 3 लोग मिल के बांट लिए और हमको सह निर्माता दिखा के अब बेवकूफ़ बना दिए।
पैसा रिटर्न नहीं किए। ये प्रकरण 2018 का है, तो वो आईपीसी के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि हमारी क्रिमिनल लॉ बैक साइड से ही चलती है कि उसमें जो भी मुकदमे यदि करंट के रहेंगे तो बीएनएस काम करेगा, नहीं तो यदि पीछे के डेट के हैं कि आपके साथ फ्रॉड कब हुआ है उस हिसाब से मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें आईपीसी धारा लगी हैं, 406 हैं, 420 हैं, 467, 468 और 506। ये 156(3) के तहत आदेश हुआ था 13 अगस्त को आदेश हुआ था कैंट थाने को, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर काफ़ी दबाव था, जिस वजह से मुकदमा ये दर्ज नहीं किया जा रहा था। हम लोग माननीय न्यायालय के समझ फिर से उपस्थित हुए। माननीय न्यायालय के यहाँ प्रार्थना पत्र फिर से दिया गया कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर है थाने के ऊपर या प्रशासन का कि मुकदमा दर्ज न करें। तो माननीय न्यायालय ने ज़बरदस्त फटकार लगाई, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंतर्गत आप मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो मुझे विवश होना पड़ेगा आपको ऊपर कार्रवाई करने को। तो कैंट थाना कल शाम को मुकदमा दर्ज किया। 2 तारीख को कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया। बिल्कुल, ये वादी विशाल सिंह के अधिवक्ता आशीष सिंह थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अदालत के आदेश पे अदालत ने जब फटकार लगाई तो बनारस के कैंट थाने में कल शाम को मुकदमा दर्ज किया जाता है। और अभी भी इन्होंने आशंका व्यक्त की है कि हो सकता है कहीं ना कहीं विवेचना के दौरान जो है कुछ लीपापोती की जाए, और इन्होंने कहा कि हम फिर अदालत के समक्ष जाएंगे और विवेचना अन्यत्र थाने को स्थानांतरित करने के लिए वहाँ पे जो है अपनी गुहार लगाएंगे। तो कुल मिला के पवन सिंह की मुश्किलें काफ़ी बड़ी हैं, क्योंकि जो धाराएं लगी हैं वो गैर जमानती हैं, संज्ञेय अपराध वाली धाराएं हैं। अब देखना ये होगा कि पवन सिंह अपने आप को किस तरीके से साफ पाक जो है साबित करते हैं, और ये विवेचना के दौरान सब चीज़ें छन के सामने आएंगी। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। હવે સમાચારોમાં આ તરફ આગળ આપણે વાત કરીએ રાજસ્થાનની, તો રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં કેન્દ્રીય સંસ્કૃતિ અને પર્યટન મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત બુધવારે એક દિવસીય મુલાકાતે ભરતપુર આવ્યા હતા। સર્કિટ હાઉસ પહોંચતા જ ભાજપના અધિકારીઓએ શ્રીવાની દયામાના નેતૃત્વમાં તેમના માથા પર પાઘડી પહેરાવીને તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું। બિહારમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા તેમની માતા સાથે દુર્વ્યવહાર કરવાના કેસ અંગે પણ તેમને ત્યાં प्रतिक्रिया આપી છે। धरती माता जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आश्रय प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है, पुष्पों में देवी के रूप में जो कुछ देता है वो देवता के रूप में मान करके उसके प्रति सम्मान है, इसका विधान हमारे विश्व मंदिर में। और माँ जो सर्वोच्च संस्था है, अपमान शब्दों का उपयोग देश में आक्रोश भी है, देश ने उसकी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये केवल प्रारंभ मात्र है। તો આગળ હવે વાત કરીએ આપણે રાજસ્થાનના सीकरनी। તો થોઈમાં ડોક્ટર આંબેડકર યુવક સંસ્થાના નેજા હેઠળ આંબેડકર મોહલ્લામાં નવનિર્મિત સમુદાય ભવનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। જણાવી દઈએ કે મુખ્ય મહેમાન ભૂતપૂર્વ વિધાનસભા અધ્યક્ષ અને ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય દીપેન્દ્રસિંહ શેખાવતે નામપત્રનું અનાવરણ કરીને ઇમારતનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। तो बीजी तरफ આપણે વાત કરીએ હવે રાજસ્થાનના ટોંકની। તો ટોંક જિલ્લાના માલપુરા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 31 અને 34માં આજે યોજાનારી પેટા ચૂંટણીમાં મતદારો ઉત્સાહ દર્શાવી રહ્યા હતા। ત્યારે જણાવી દઈએ કે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલા સમયપત્રક મુજબ 3 સપ્ટેમ્બરે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું હતું અને 4 સપ્ટેમ્બરે મતગણતરી હાથ ધરાશે। સમાચારોમાં હવે આગળ આ તરફ આપણે વાત કરીએ તો છેતરપિંડી કરનારાઓ અને છેતરપિંડી કરનારાઓની જાળ કોઈને પણ ગમે ત્યાં તેનો શિકાર બનાવી શકે છે। છેતરપિંડી કરનાર તમારો મિત્ર અથવા તો તમારો પોતાનો સંબંધી પણ હોઈ શકે છે। હાથરસમાં બનેલી તાજેતરની છેતરપિંડીની ઘટનાએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે, જ્યાં એક અભણ દંપતી તેમની જ સગી બહેન દ્વારા છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યું। આ રિપોર્ટ જુઓ અને આવા છેતરપિંડી કરનારા સંબંધીઓથી સાવધાન રહો। ठगों का मायाजाल, रिश्तेदारी की आड़ में ठगी, अनपढ़ दंपति को जाल में फंसाया। ठग ने हड़प ली 3 बीघा जमीन,
पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। न्याय ना मिलने पर आत्मदाह की धमकी। ठग और ठगों का मायाजाल जिसका शिकार कोई भी कहीं भी हो सकता है। ठग आपके दोस्त भी हो सकते हैं या खुद के रिश्तेदार भी। हाथरस से सामने आने वाली हालिया ठगी की घटना ने सबको चौंका कर रख दिया है, जहां एक अनपढ़ दंपति अपनी ही रिश्तेदार बहन की ठगी का शिकार बन गया। दंपति ने लाखों रुपए लौटाने के बावजूद अपनी 3 बीघा जमीन गंवा दी। अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुका है और आत्मदाह की चेतावनी दे रहा है। पूरा मामला हाथरस के मुरसान थाना क्षेत्र के गिलोदपुर गांव का है, जहां बहन ने ही ठगी की घटना को अंजाम दे दिया। डर के साए में जी रहा गिलौनपुर गांव के मुरसान थाना क्षेत्र के गांव गिलौनपुर का एक परिवार, वजह जमीन भी हाथ से चले जाना, पैसा भी हाथ से चले जाना। कार्रवाई के नाम पर केवल एक एफआईआर की जाती है और उसके बाद पीड़ित परिवार को ही लगातार धमकियां दी जाती हैं, प्रशासन के द्वारा भी और अवैध जमीन पे कब्जा करने वालों के पे भी। परिवार हमारे साथ मौजूद है। मामला सिर्फ इतना है कि ज़रूरत पड़ने पर जब पैसा लिया गया और पैसा देने के बावजूद भी आज तक वो पैसा वापस नहीं किया गया और जो ज़मीन थी उसको गिरवी नामे के नाम पर बताते हुए बैनामा करा लिया गया, जिसके कारण आज ये परिवार कई सालों से पीड़ित है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कुछ समय पूर्व उन्हें 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ी थी। इसके लिए उन्होंने अपनी रिश्तेदार बहन श्रीदेवी, जो मथुरा की रहने वाली है, से रकम उधार ली और इसके बदले जमीन गिरवी रखने की बात कही। लेकिन आरोप है कि श्रीदेवी ने धोखे से गिरवी पत्र की जगह पक्का पैमाना करवा लिया। परिवार का आरोप है कि ब्याज समेत 7,50,000 रुपए चुका देने के बाद भी जब उन्होंने जमीन वापस मांगी तो बहन ने जमीन किसी तीसरे को बेच डाली। विरोध करने पर महिला ने अपने बेटों संग मिलकर उनसे मारपीट भी की। हाँ, मेरे नाम जमीन है। किसने ली वो आपकी जमीन? मेरी बुआ की लड़की, जिनकी बुआ की लड़की नंद। आपकी नंद लगती है? हाँ, मेरी नंद लगाते हैं। कैसे ली थी? आपको पैसे लिए थे, आपने क्या किया था? मेरे तो यूँ कहते रही जब तो छोरा ही नौके लगवाए दूंगी, बहुत है कई सिरियाई बहुत है कि छोरा पढ़ाई ले में बाकी नौकरी लगवाए दूंगी, मीठी बोल बोल के। आपने पैसा किस चीज़ के लिए लिया था? मैंने पैसा ले, मेरे घर में बीमारी फैल गई। ठीक है, कितना पैसा लिया था? मैंने 4 लाख ले। वापस कब किया आपने? मैंने वापस अब ही करे। कितने पैसे आपने दे दिए? मैं लॉकडाउन भयो का जब बातें पहले वापस कर दें। कितने पैसे आपने दे दिए थे? 7.5 लाख रुपया। तो आपने इसके हफिज में जमीन गिरवी रखी थी, क्या किया था? मैं तो वो का सारा जी का करवाए रही है, अंगूठा लगवाए ले मुँह पे। किस पे? पेपर न पे। पेपर पे? हाँ। तो वो आपने बैनामा था, गिरवी नामा था? गिरवी नामा। गिरवी नामा के नाम पर आपसे बैनामा करा? हाँ, बैनामा करवाए लो। तो आपको नहीं पता था कि बैनामा करा? कि आपको यही बता गया गिरवी नामा? हाँ, गिरवी नामा है। और पुलिस कार्रवाई कर रही है? ना कर रही, पुलिस कार्रवाई। क्या कर? यूँ कह रहा है पुलिस अधिकारी कार्रवाई कि हमें तो भाई जेल भेजेंगे बालक और क्या कहते हैं, अब तुम्हें कछुड़ा मिल लो। यानी कि आपको ही धमकाया जा रहा है? मेरे को धमकाया जा रहा है। मेरे लौड़ा पे बहुत कार्रवाई भई है। मैं यहाँ है नहीं, मेरे लौड़ा टेटिया पकड़ रही खेत में, सब डंडा तो खार कर सके बिनो मार को राहुल हो चुका है, राहुल और मुझसे क्या मतलब बाखुना और राघविंदर हो चुका। कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? जमीन और पैसा अगर नहीं मिलता तो न मिलेंगे तो हम फांसी खा के मरेंगे और क्या करेंगे? पीड़ित महिला सुक्को देवी ने कहा कि हमने ब्याज समेत सारा कर्जा चुका दिया, फिर भी हमारी जमीन वापस नहीं की गई। अब हमें ही धमकाया जा रहा है, हम न्याय चाहते हैं। पीड़ित पिछले 2.5 साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। हाल ही में जब मामला एसपी हाथरस चिरंजीव नाथ सिन्हा के संज्ञान में आया तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। मुरसान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना भी शुरू कर दी है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि विवेचक उनके घर आकर उन्हें ही दोषी ठहराने लगे और जेल भेजने की धमकी भी दी। पीड़ित पूरन सिंह का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमसे ही अपराधी जैसा बर्ताव किया जा रहा है। न्याय नहीं मिला तो हम आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। हमने बेची नहीं थी जमीन, और हम बेचते तो अपनी ससुराल में बेचते। हमने तो गिरवी रखी थी 4 लाख रुपए में, और 7 लाख रुपए हमसे ले लिए, जमीन भी ले ली। हमारी बुआ की लड़की है बहन। तो जमीन आपसे कैसे ली? गिरवी नामा लिखवाया था, बैनामा कराया था, कैसे कराया था? गिरवी नामा लेके मैं गया नहीं था, ये मैंने लड़का और इसकी मम्मी को भेज दिया। मम्मी के नाम जमीन थी इसकी। जमीन माता जी के नाम थी? हाँ। यानी आपकी पत्नी के नाम? हाँ, पत्नी के नाम।
वो पढ़ी लिखी है? नहीं पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी तो अब आपने पैसे दे दिए उनको? पैसे दे दिए। आपने 7 लाख रुपए दे दिए? दे दिए। अच्छा, और जमीन भी नहीं मिली आपकी? जमीन पैसा भी मिली, नहीं मिला? पैसा ही नहीं मिला। पुलिस ने अब तक पुलिस से शिकायत की? हाँ, कप्तान साहब ने हमारी सुनवाई की और उन्होंने FIR करवाई। अब जाके जो है वो हमारी दरोगा जांच कर रही थे, उनकी बल्दी होगी। दूसरा दरोगा आया, वो तो ये कह रहा है कि तुमको जेल भिजवाऊंगा, हमारे को तो जेल भिजवा रहे हो। इसी बीच गांव के बुजुर्ग राजपाल सिंह ने भी पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करने की बात कही, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला। न्याय की आस में यह परिवार अब मुख्यमंत्री दरबार में गुहार लगाने की तैयारी में है। अरे हम जेल लेवा लगे पंचायत जुरी माटिया उनके जो पंचायत भाई तो वो जिन तो पहले कौन लोग वो? इनके कौन लोग हैं? इनके रिश्तेदार है वो। अच्छा, जिन पहले झूठ बोले कि लिखा पढ़ी करवा लिए, बैनामा करवा लो, जी जानने के करना वगैरह करे हुए। जो सलपरी है जो पैसे उठाते हैं ऑनलाइन। तो इन्होंने पैसा लिया था? इनने पैसा ले 4 लाख रुपया। ठीक है, कितना पैसा इन्होंने दे दिया? 6.5 लाख रुपया वो बने के मोती आए को 6.5 लाख रुपया हम पे आ चुके हैं इनको। आ चुके हैं? हाँ, ऑनलाइन पैसा आए हुए और ऑनलाइन ना होता तो हम ऐसे कर देते जिन्हें की। तो अब वजह क्या है, जमीन वापस नहीं मिल रही? ना जब भी वापस दे रहे वो, अब तो बहका रहे हैं, वैसे लटका रहे हैं इन लोग। और जो गरीब है बेचारी, वो है पैसा भाई अरबपति है। अच्छा, यही काम थे वो अरबपति भाई है, ऐसी लिखा पड़ी कर। इनके अलावा भी और भी किसी की? हाँ, और भी मैटर बताए बाकी कई हो। यही काम अपना छोटे से किसान है, वो तो बहुत अरबपति आदमी है वो। बहुत जमीन निकल रही है। हाँ, सीधा पैसा वसूल करते हैं। और मोती उल्टे सीधे बोले, मैंने समझ आया मैंने कि तुम्हारी कैंसर फैंसर हो जाओ, ऐसे काम मत करो। पर भाई ना वो तो जो बुरी चांद के तू कोई कहा है जा, तो वो मानी ना है भाई बात। और भला आदमी है, बहुत पबला गई। आपने पुलिस से भी जैसे इन्होंने शिकायत किया तो उसमें कुछ कार्रवाई हो रही है? तब कोई कार्रवाई ना रही नहीं बिचाए नहीं तो ना। पुलिस तो पैसा ना की डोलते है, सब पैसा दे दे मान जाते वो पैसा भाई है, दया भाई बंदा है जाएंगे भी। ये है बात। अब देखना यह है कि गरीब दंपति को आखिर कब तक न्याय मिल पाता है और दोषियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है, ताकि इस गरीब परिवार को उसकी जमीन वापस मिल सके और ठगी करने वाली बहन को उसके किए की सजा। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार परेशान है, ज़मीन भी चली गई, पैसा भी चला गया, और जो माता जी वो मजबूर हैं कि अगर दोनों में से कुछ भी मिला तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के जिस तरीके से भय मुक्त उत्तर प्रदेश के जो आदेश है, ऐसे में डर के साए में जी रहा परिवार है। कि ये भाई भी हमारे साथ मौजूद है जो बताते हैं कि इनकी बुआ जी हैं जिन्होंने जमीन। क्या भैया नाम है आपका और क्या मामला रहा? मेरा नाम दिनेश है और मामला ये है कि मेरी माँ के नाम पे ज़मीन थी, हमको जरूरत थी पैसे की, तो हमने गिरवीनामा के लिए गए थे। हमने भारी बात गिरवीनामा के लिए हुई थी। यानी 4 लाख रुपए में आपने अपनी जमीन गिरवी रखी? गिरवी रखी 3 बीघा बुआ जी के पास। उन्होंने हमसे पैसे भी ले लिए और जमीन थर्ड पार्टी को बेच दी, और वो ब्याज का काम करती हैं। 15-20 बहनामा उसके घर पर ऐसे ही रखे हैं। हम जैसे लोगों के सब परेशान, सब पीड़ित हैं। जो जमीन गिरवी रखती वो उन्होंने बेच भी थी? उन्होंने बेच दी, उनसे पैसे ले लिए, हमसे पैसे ले लिए, हमारा खेत दिया ना पैसे दिए। कितने साल हो गए? 2.5-3 साल से भाग ही रही हम तो। हम एक दिन भी नहीं आराम किया हमने। पर अब हमें उम्मीद जागी थी। कप्तान साहब के आदेश में हमारा मुकदमा लिखा गया। अब जो जांच करे दरोगा जी, उनका तबादला हो गया, नए दरोगा जी आए, वो हमको उल्टा जेल भेजने के लिए बोल रहे हैं। यानी दरोगा जी आपको खुद ही धमका रहे हैं? खुद ही धमका रहे हैं, जेल भेजने के लिए बोल रहे हैं। बुआ जी की तरफ से भी धमकी मिलती है? हाँ, बुआ जी वहाँ से तो हमको मारपीट भी कर गए वो एक बार हमसे। अच्छा। हाँ, पर लेकिन अब हम गरीब आदमी कौन सुनता है जी। हमारी बॉर्डर का गाँव हमारा, देखते हैं यहाँ कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर वहाँ जाएंगे, योगी दरबार जाएंगे, वहाँ पर जाके फांसी खाएंगे और क्या करेंगे फिर। वो उससे आगे कोई जगह है ही नहीं फिर हमारे लिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सीधा कहना है कि उत्तर प्रदेश को पूरे भय मुक्त बनाया जाएगा और ज़मीनों पर कब्जे कतई नहीं किए जाएंगे, ऐसे में इनकी ज़मीन को एक फर्जी तरीके से, कुटरचित तरीके से हड़प भी लिया है और ये परिवार ज़मीन योगी दरबार में जाने को मजबूर है और साथ ही आत्महत्या करने को भी मजबूर है। हाथरस से सुनील कुमार, इंडिया न्यूज़। તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.